This is experiment number 5. So, adsorption of acetic acid on charcoal. Aim: to study the absorption of acetic acid on activated charcoal and to determine the specific surface area of the adsorbent. These are the references. So, if you want to go deep, you can refer these books. Now, the requirements for our experiment are apparatus, reagent bottles, beaker, burette, pipette, conical flask, volumetric flask, chemicals, distilled water, activated charcoal, zero point 0.5 normal of acetic acid, zero point 0.1 normal sodium hydroxide. Next one is, as indicator we will be using this phenolphthalein. So in this experimental video, I don't have instrument right now, so I just will be explaining, and I will make sure that with my explanation you will be understanding the whole experiment. So the points to be shared in this video will be your aim. I will be explaining the factors affecting absorption, the main procedure, and the calculation part. Okay, so do not skip the video and watch the full video. So this is a lengthy experiment, at least 4 hours goes in this. uh, okay, this is the theory part. You can pause the video and you can note down the theory. So I don't have much of time, so I won't will be explaining this theory part. You can pause the video and you can note it down. This is the further theory part. From here, it's starting from here. And these are the types of absorptions: physical absorptions. This second one is chemical. And these are the factors affecting adsorption. Surface area of adsorption, you can note it down. Next one is nature of adsorption, temperature, pressure, thickness, and last is pH of medium. Next, application of adsorption. Next is procedure. So this is the main part of the experiment, which is the procedure. So for procedure, देखो, prepare the following solution in given order using a clean, dry 50 ml volumetric flask and transfer to clean, dry stoppered conical flask. So here आपको करना क्या है, 5 कोनिकल फ्लास्क लो और ये 5 सोल्यूशन आपको कोनिकल फ्लास्क में बनाने हैं. तो अच्छे से उसे धो के लो, वरना टाइट्रेशन में डिफरेंस आ सकता है. तो पहले वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में आप नेमिंग करके रख दो सबके लिए, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 40 ml, 50 ml, ऐसा नेमिंग कर लो. तो फर्स्ट वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में हमको बनाना है 10 ml 0.5 नॉर्मल एसिटिक एसिड डाइल्यूटेड टू 50 ml विद डिस्टिल वाटर. यानी कि देखो, पहले क्या करेंगे, 10 ml लेंगे 0.5 नॉर्मल एसिटिक एसिड, ये ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है. उसमें हमको मिलाना है 50 ml डिस्टिल वाटर. तो दिस विल बी आवर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क 1. ऐसा. सो ये हमारा पहला वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क 10 ml वाला, ठीक है, बना लिया हमने. नाउ सेकेंड 20 ml 0.5 नॉर्मल एसिटिक एसिड डाइल्यूटेड टू 50 ml ऑफ डिस्टिल वाटर. तो ये हमारा अब सेकेंड वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क बन गया, जिसमें हमने 20 ml लिया, उसको 50 ml पानी में डिस्टिल वाटर में डिसॉल्व किया. नाउ थर्ड वन, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लो, सेम
अभी 20 की जगह पे 30 ml का आपको लेना है, 30 ml का 0.5 नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद फोर्थ में सेम 40 एंड फिफ्थ में हमको लेना है 50 ml, ठीक है। ये हमारे 5 ऐसे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क बन गए। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है देखो, ऐड 1 ग्राम ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल टू ईच फ्लास्क बाय स्प्रिंकलिंग टू ऑब्टेन कंप्लीट वेटिंग। अब हम क्या काम करेंगे, नेक्स्ट स्टेप है 10 ग्राम सॉरी 1 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल ले लेंगे, ठीक है। उसको फिर थोड़ा थोड़ा सा स्प्रिंकल करके हम हर एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डालेंगे, ठीक है। क्यों थोड़ा थोड़ा करके, ताकि वो पूरा मिक्स हो जाए ठीक से। उसके बाद हर एक को हम 45 मिनट्स के लिए स्वेल करेंगे, ऐसा ऐसा 45 मिनट्स के लिए, ठीक है। एंड इट शुड बी कंटिन्यूस, मतलब आप पॉज मत लो। अगर आपका हाथ दर्द कर रहा है, हैंड इट ओवर टू योर पार्टनर्स एंड देन स्वेल करने के बाद 45 मिनट्स 10 मिनट्स के लिए आप उसको एक वाटर बाथ पे रखोगे, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे कोई भी। नेक्स्ट फोर्थ, अब हम क्या करेंगे, फिल्टर दी सुपरनाटेंट इनटू अ स्मॉल ड्राई कोनिकल फ्लास्क, रिजेक्ट फर्स्ट फ्यू ml ऑफ द फिल्ट्रेट। अभी हम क्या काम करेंगे, जो भी हमने बनाया था हमारे इसमें, ठीक है। अब एक बीकर लेंगे, ठीक है, ये फिल्टर आउट करेंगे, ये हमारा है, ठीक है। फिर ये जो था इसमें फ़िल्टर आउट करेंगे, ठीक है, और ये हमारा बचा सोल्यूशन। तो दिस सोल्यूशन विल बी यूजिंग फॉर आवर फर्दर एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। अभी ये सोल्यूशन हमारा बन गया है, इसका भी बन गया, इसका भी बनाना है आपको, सेम सेम इसका ऐसा सा 5 पीकर तैयार करना है, ठीक है। अब इसको लो और इसमें से देखो, टाइट्रेट 5 ml ऑफ दिस फिल्ट्रेट विथ 0.1 नॉर्मल NaOH। अभी इसके एक बीकर तैयार हुआ, इसका एक बीकर, इसका एक बीकर, सेम दिस एंड सेम दिस। अभी इसमें से हम कितना ml लेंगे, 5 ml, इसका हम 5 ml लेंगे इसमें से, ठीक है, एंड इसका टाइट्रेशन करेंगे। सो एक का आप जितना आपकी ऑब्जर्वेशन में टेबल लिखा है आप उसकी रीडिंग ले सकते हैं, 5 ml कर करके, ठीक है, ताकि कम से कम एरर निकले। तो 5 ml लिया इसका। सो नाउ प्रोसीड द टाइट्रेशन। तो टाइट्रेशन, अभी इसको आप वापस से एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में लोगे, टेक योर स्टैंडर्ड वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ठीक है। इसके अंदर 5 ml सोल्यूशन डालो एंड डू दी टाइट्रेशन। तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में 1 to 2 ड्रॉप्स ऑफ फेनोप्टेलिन डालना पड़ेगा एज एन इंडिकेटर, और हमारा एंड पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे लिखा है कलरलेस टू पिंक कलर। सो वंस यू गेट पिंक कलर यू हैव टू स्टॉप द टाइट्रेशन एंड नोट डाउन द ब्यूरेट रीडिंग, एंड दिस विल बी अवर फर्स्ट रीडिंग, फर्स्ट BR रीडिंग, ठीक है। सेम इसका आपको करना है, इसका, इसका और इसका। सो दिस वॉज द प्रोसीजर, ठीक है। अब नेक्स्ट कैलकुलेशन पार्ट। So already molecular weight of acetic acid is 60 gram per mole. The area of cross section, this is already provided, 16 into 10 raised to minus 16. Now this is the observation table, ठीक है। ये है हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड N1, ठीक है। तो 0.1 नॉर्मल, 0.2 नॉर्मल, 0.3 नॉर्मल, 0.4 नॉर्मल एंड 0.5 नॉर्मल। ये जो हमने 10 ml किया था ना, 10 ml से हम लोग ने वो स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाया। फिर उसके बाद 20 ml का स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाया तो उसका 0.2 नॉर्मल निकला। 30 ml से बनाया तो 0.3 निकला। 40 ml से बनाया तो इसका 0.4 नॉर्मल, एंड 50 ml से जो बनाया था तो वो उसका स्टैंडर्ड सोल्यूशन नॉर्मेलिटी के साथ 0.5 निकला। अब हमारी फर्स्ट ब्यूरेट रीडिंग देखिए, दिस आर दी ब्यूरेट रीडिंग्स। तो फर्स्ट ब्यूरेट रीडिंग फॉर 0.1 नॉर्मल
सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड हमारा निकला था अराउंड 40। मैंने जैसे बोला था आप एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का 2 से 3 रीडिंग निकाल सकते हो, तो हमने 2 रीडिंग निकाली थी। ठीक है, तो इसका 40 ml हमारा स्टार्टिंग में आया था, सॉरी 4.0, एंड सेकेंड रीडिंग आई थी 3.9 और इसका मीन निकाला 4। इसके बाद 0.2 की इतनी आई। मैं एक ही एक्सप्लेन करती हूँ, अगर आपको एक समझ गया तो आगे की भी समझ जाएगी ना, तो आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, मेरा भी टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। फर्स्ट के लिए 4.0 रीडिंग, सेकेंड के लिए हमारी है 3.9। इसका मीन निकाला। मीन कैसे निकालते हैं, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2। ठीक है, नेक्स्ट the equivalent concentration of acetic acid equilibrium normality at adsorption equilibrium which is CE। तो CE हमारा equivalent concentration है। ठीक है, CE is our equivalent concentration which is equal to N2। N2 here हमारा है acetic acid, ठीक है, का कॉन्सेंट्रेशन। N2 is our कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड आफ्टर एड्सॉर्प्शन। ठीक है, तो ये देखना। अभी देखो हमारा फॉर्मूला है, इसके लिए हमको हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। अभी हमारा फॉर्मूला है N1 V1 इक्वल टू N2 V2। सो दिस फॉर्मूला इज फॉर NaOH and this one is for acetic acid। ठीक है, अभी देखो ये है N1, नॉर्मलिटी ऑफ NaOH हमने कितना लिया था, NaOH 0.1। अभी यहाँ पे देखो 0.1 की जगह पर हम यूज़ करेंगे 0.09। अब क्यों 0.09, क्योंकि जो हमारी NaOH होती है ना, उसकी थ्योरेटिकल वैल्यू तो हम 0.1 लेते हैं, बट इफ़ वी कैलकुलेट इट एक्सपेरिमेंटली तो इसकी वैल्यू होती है 0.09। ठीक है, क्योंकि NaOH इटसेल्फ इज़ नॉट अ प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन, क्योंकि NaOH की एक खास बात होती है इट इज़ हाइग्रोस्कोपिक, तो ये अपनी वैल्यू थोड़ी चेंज कर सकती है। तो इसीलिए हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 0.09 लेते हैं इंस्टेड ऑफ थ्योरेटिकल वैल्यू 0.1 नॉर्मल। ठीक है, तो ये हो गया। वॉल्यूम क्या लिया था हमने, ये जो V1 है ये हमारा ब्यूरेट रीडिंग है। जितना भी आपका ब्यूरेट रीडिंग आएगा वो लिखेंगे, तो ये हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा BR। ठीक है, N2 वी हैव टू कैलकुलेट एंड V2 विल बी डिवाइड। V2 क्या है, वॉल्यूम ऑफ एसिडिक एसिड। कितना लिया था हमने, 5 ml, तो हमारी वॉल्यूम होगी यहाँ पे 5 ml। सो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा 0.09 इंटू BR डिवाइड बाय वॉल्यूम दैट इज़ 5 ml। इससे हमारा N2 दैट इज़ CE हमें मिल जाएगा। ठीक है, आपको ये फार्मूला समझ गया। अब देखो तो हमारा 0.09, ठीक है, हमारी फर्स्ट ब्यूरेट रीडिंग कितनी आई, देखो कितनी आई, 4। सो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 4 डिवाइड बाय 5 विच इज N2। तो ये कैलकुलेट करने के बाद हमारी कुछ रीडिंग आती है 0.072 इक्वल टू N2। ठीक है, this is our reading 0.07। so in same way you have to calculate for all। देखो ठीक है, देखो अभी यहाँ पे 8.4 मिला है ना, तो हम क्या करेंगे 0.09 मल्टीप्लाई बाय 8.4 डिवाइड बाय 5। नेक्स्ट रीडिंग में 12.8, तो सेम BR के जगह पे सिर्फ आपको 0.09 मल्टीप्लाई बाय 12.8 डिवाइड बाई 5 करना है। ऐसे आपको करके सब रीडिंग मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमें ऐसी कुछ रीडिंग्स मिली है। नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड एडसॉर्ब्ड पर लीटर सोल्यूशन। इसको हम कैसे निकालेंगे, N1 माइनस N2। अगर N1 यहाँ पे है इसका ये और N2 है ये, तो 0.1 माइनस 0.072, तो हमको ये आंसर मिला। तो सेम वी कैलकुलेट फॉर दी अदर्स। नेक्स्ट इज x/m।
इक्वल टू 3 ब्रैकेट N1 माइनस N2। तो N1 माइनस N2 हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है 0.028, तो बस उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमको हमारा x/m मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है c डिवाइड बाई x/m। ठीक है, सी ई डिवाइड बाई x/m। तो सी ई ऑलरेडी हमारे पास है, x और m भी है। ठीक है, निकाल लो इसकी वैल्यू। ठीक है, तो हमारा x क्या है यहाँ पे, अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड एब्जॉर्ब पर 50 ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, और m क्या है, एक्टिवेटेड चारकोल का मास। अब नेक्स्ट हमारा है, हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट करना कैसे करना है, सी ई डिवाइड बाई x/m वर्सेस सी ई। ठीक है, अभी देखो हमें सी ई x/m की सारी वैल्यूज़ मिली है यहाँ पे। ठीक है, और सी की वैल्यूज़ है यहाँ पे। ये आप सी ई बाई x/m ये आप y एक्सिस पे प्लॉट करेंगे एंड दिस यू विल बी प्लॉटिंग ऑन x एक्सिस। ठीक है, तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा निकलता है। देखो ये हमने y एक्सिस पे प्लॉट किया है और ये हमने x एक्सिस पे प्लॉट किया है। ठीक है, उसके बाद आपने तो सीखा होगा ना प्लॉटिंग कैसे करते, प्लॉट कर दो। सो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एंड मार्क द स्ट्रेट लाइन। उसके बाद आप एक रेक्टेंगल बना के स्लोप लो। अभी स्लोप कैसे लेना है, ठीक है, ये भी मैं बता देती हूँ। फिलहाल के लिए आप देख लो, यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट्स मार्क किए हैं। तो दिस विल बी आवर x1 y1, दिस इज x2 y2। ठीक है, अब देखो स्लोप हम निकालते कैसे। स्लोप इज y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। हमारा y2 1.034 था, ये मैंने वही रीडिंग ली जो मेरे टेबल में था। ठीक है, माइनस 0.85 डिवाइड बाई ये, तो हमारा कुछ ऐसा आया और हमारी रीडिंग आई 2.32। अब देखो नेक्स्ट प्रोसीजर, कैलकुलेशन इसमें थोड़ा भारी भरकम है तो आप ध्यान दो। ठीक है, और देखो तो हमको हमारी यहाँ पे स्लोप का फॉर्मूला है 1/ym। ठीक है, और 1/yn देयरफॉर 1/ym इक्वल टू स्लोप। हमें स्लोप क्या मिला, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, जो कि हमें 2.32 मिला। अब यहाँ पे मैं स्लोप की क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि आगे देखो हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल, और उसके लिए हमें ये फॉर्मूला आता है y/m मल्टीप्लाई बाई n/e। अभी ये स्लोप हमें ये y/m कैलकुलेट करने के लिए चाहिए, इसीलिए स्लोप का फॉर्मूला है। ठीक है, तो कुछ भी टाइम पास के लिए नहीं होता, हर चीज़ का कुछ ना कुछ काम होता है। ठीक है, अभी तो उसके बाद निकाल लिया स्लोप 2.32, देयरफॉर स्लोप इज़ 2.32, तो इसलिए हमारा y/m 1 स्लोप, देयरफॉर y/m हमारा कितना मिला 1/2.32 विच इज़ इक्वल टू 0.431। तो हमें हमारा y/m मिल गया 0.431 मिल गया। सही बात। हाँ, और एक और हमें चेक करना है कि हमारा y/m करेक्ट है कि नहीं। हमने ग्राफिकली भी चेक करके लिए, देखो हमको हमारा कैलकुलेशन के थ्रू y/m कितना मिला 0.431। देखो अब ग्राफिकली भी कितना मिल रहा है इंटरसेप्ट 0.4। ठीक है, तो ये आना चाहिए तभी आपका कैलकुलेशन बरोबर होगा। नाउ फॉर्मूला पे जाते हैं, स्पेसिफिक एरिया ऑफ चारकोल y/m मल्टीप्लाई बाई n क्या है, एवोगाड्रोस नंबर मल्टीप्लाई बाई ए। ठीक है, अभी देखो y/m कितना मिला 0.431 डिवाइड बाई 60 क्या था हमारा वेट ऑफ एसिटिक एसिड मल्टीप्लाई बाय 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10/2 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 10⁻16। कैलकुलेट कर लो, हमारी फाइनल आंसर आता है 6.745 × 10⁻⁴
6 cm² per gram। सो आई होप कि आपको ये एक्सपेरिमेंट समझा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ कमेंट कि मुझे मोटिवेट फील होगा फिर, देन आई विल बी पुटिंग द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट explanation. Okay, thank you, and please, if you like, please subscribe my channel.